السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں بات کرنے والا ہوں اس بات پر کہ آج جس طرح سے مسلمانوں کے اندر شرک جس طرح سے پھیلا ہوا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، جو مسلمانوں کے جو حالات ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی تو کوئی بات ہے نہیں، اور ایسی بات بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی کیا حالات ہے، کس حال میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارے اوپر کس طرح سے ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ کسی سے کوئی چھپی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمیں بخوبی معلوم ہے، ہمیں دکھ رہا ہے، معاشرے میں سب کچھ برابر ہر کسی کو دکھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو دعوت بھی یہی دیتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اور ایک اللہ سے اپنی حاجت روا مدد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اور اپنی حاجت روا کروائیے اللہ تعالیٰ سے ہی، جو ہے اپنی حاجت روا مانگیے آپ۔ ہمارے مسلمانوں کی جو دعوت ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی، کیونکہ جب ایک مسلمان جب صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، صرف ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی معبود باطلانہ ہیں، جتنے بھی لوگ اور بہت سارے معبود کی عبادتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے جو ہے ہم پر جو ہے زیادہ تر یہ ظلم و زیادتیاں یہ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے اندر ہم سب کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے اپنے اعمال جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں جو چیز رائج ہے، ٹھیک ہے، اور اس بارے میں ہمارے بہت سارے دیکھیے آپ جو ہے علماء جو ہے بالکل شرک کی طرف جو ہے ہمیں دعوت بھی دے رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان اس پر چل بھی رہے ہیں، جا رہے ہیں مسلمان اس پر۔ آج جو ہے شرک کی دعوت جو ہے مسلمان خود کھلم کھلا دے رہا ہے، قبروں پر آنے کی، ٹھیک ہے، ان سے فریاد رسی کرنے کی، ان سے دعائیں کروانے کی جو ہے۔ آپ جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ جو ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے ابھی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے تیز دعا قبول ہونے کا مقام اجمیر معلیٰ غریب نواز کا دربار ہے۔ ابے سالے تبھی میرا معاف کرنا، غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی جو جگہ ہیں ان میں سے ایک جگہ اجمیر معلیٰ غریب نواز کا دربار ہے۔ تمہیں شرم ہے؟ کچھ شرم حیا ہے؟ نہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ ویڈیو، اس میں کس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے قبروں پر آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ایسے راہ چلتو کوئی مولانا نہیں ہے، مفتی ہیں یہ۔ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے آج مسلمان کس طرح سے برباد ہے۔ ان سے توحید کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ توحید ہے، ان سے توحید کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ توحید کی دعوت دیں گے، جبکہ مسلمان کا کام یہ تھا جو ہے کہ توحید کی دعوت دیں، ایک اللہ کی دعوت دیں، یہ ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، ان کو تو بس اپنے مسلک کو بچانا ہے۔ یہ مسلک ہی اس میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے مسلک کو بچا رہے ہیں۔ یہ ان کو جو ہے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ اسلام کے وہ نہیں ہے سپاہی کی، اسلام کے سپاہی، اور یہ اسلام کو بچا رہے ہیں، ورنہ اس طرح سے یہ کام کرتے کہ قبروں پر آنے کی دعوت دیتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے، سورہ فاطر میں آیت نمبر 22 پر اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، آپ یہ دیکھیے، آیت دیکھیے آپ یہ، کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے،
जिंदा और मुर्दा बराबर हो नहीं हो सकते, और आप अपनी आवाज उनको नहीं सुना सकते, अपनी आवाज उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में दफन है। किसी भी मसलक के तर्जुमानी करने वाला कोई भी आलिम हो, किसी भी मसलक के तर्जुमात को आप ले लीजिए, उसमें यही चीज आपको मिलेगी। आप ये आयत देखिए कि आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में दफन है, मगर अल्लाह जिसे चाहे, वो अल्लाह के हाथ में, वो किसी को भी सुना सकता है। लेकिन ये जब आयत नाजिल हुई, किस पर नाजिल हुई है? ये हमारे नबी पर नाजिल हुई ना, अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुई। और अल्लाह ताला किससे कह रहा है? अपने नबी से कह रहा है कि आप अपनी आवाज उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में दफन है। ये इस मौलाना की क्या औकात है जो है, इन जैसे लोगों की क्या औकात है कि ये दरगाहों पर आने की, कब्रों पर आने की जो दावत दे रहे हैं, इनकी क्या औकात है जो है कि ये हमारी बात जो है वो सुन लेंगे। और इसको भी देखिए, ये भी एक मुशरिक है, ये सारे मुशरिक हैं। ये इसको भी देखिए जो है ये दावा कर रहा है। ठीक है, इसको भी सुन लीजिए आप पहले। कुरान मुकद्दस खत्म करते हैं तो गैब से आवाज आती मोइनुद्दीन, क्या बोला तूने? तो गैब से आवाज आती मोइनुद्दीन, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हमने तेरा खत्म कुरान कबूल कर लिया और तुझे बख्श दिया। खाओ माँ कसम। तो अर्ज करते मौला मुझे तो बख्शा, मेरे मुरीदों का क्या होगा? बात तो सही है। इरशाद फरमाया गया क़यामत तक तेरे सिलसिले में जो भी मुरीद होगा उनको हमने बख्श दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। उसके बाद बात करेंगे हम। तो इन जैसे मौलाना से, इन लोगों से कुछ उम्मीद की जा सकती है? ये मुनाफिक और मुशरिक जिनकी जिंदगी में जो है शिर्क भरा पड़ा हुआ, जिनकी जिंदगी में बिदातें भरी पड़ी हुई है, इन लोगों से उम्मीद की जा सकती है? ऐसे लोगों से बचिए और आप अल्लाह के कुरान की तरफ आइए, सही हदीस की तरफ आइए। सही हदीसों से, कुरान से और सही हदीस से अपनी रहनुमाई लीजिए। आप जिस भी मसालिक के मानने वाले हो, आप जो है कोई भी चीज़ अगर कोई आपका कोई आलिम कह रहा है, बता रहा है, आप उस पर गौर कीजिए आप कि वो हमें दावत क्या दे रहा है, कुरान का दे रहा है, हदीस का दे रहा है, क्या दावत दे रहा है? रसूलुल्लाह का दावत दे रहा है। हमारे जितने भी अंबिया कराम आए, जितने भी नबी आए, उन लोग का मकसद क्या था? उन लोग का क्या दावत था? ये शख्सियत परस्ती का था? उन लोग का भी दावत यही था कि एक अल्लाह की इबादत की जाए, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए। वरना आप बताइए, तुम में और तुम्हारे में और जो यहूदी और नसरानी जो है, इनमें क्या फ़र्क है बताइए? तुम में और नसरानी यहूदियों में क्या फ़र्क है बताइए आप एक बार। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत फ़र्क है। मैं कहता हूँ बहुत फ़र्क है, तुम में और उन लोगों में बहुत फ़र्क है। क्यों? क्योंकि यहूदी और नसरानी ईसाई यहूदियों में और ईसाइयों ने, उन लोगों ने अपने नबी को अपना रब बना लिया, और वो कहते भी कि ये हमारे रब हैं। ठीक है, उन लोगों ने अपने नबी को रब, यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बनाया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बनाया। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है, कि उन लोगों ने जो अपना रब बनाया, वो सिर्फ एक को, अल्लाह को छोड़कर सिर्फ एक को अपना रब बनाया, वो भी अपने नबी को बनाया है। आज ये मुसलमानों का हाल है कि ये जो है एक अल्लाह को छोड़कर दुनिया के कितने सारे लोगों को अपना रब बना के बैठे हैं, कितने सारे लोगों को जो है अपना रब बना के बैठे हैं। औलाद देने वाला अलग है, रिस्क देने वाला अलग है, दुनिया के और बहुत सारे काम करने वाला जो है, बिगड़ी बनाने वाला अलग अलग है, बेटा देने वाला अलग, बेटी देने वाला अलग, कितने सारे लोग हैं। आप जो है अगर देखेंगे, जो आप देखिए, आप सर्च करके देखिए यूट्यूब पर, इनके खुराफात इनके देखिए जो है। इनके यहाँ तो बाकायदा जो है जाकर मज़ारों पर जो उनके, ये तो कहते हैं, अगर कभी बात होता है तो कहते हैं कि नहीं, हम जाके उनके वसीले से दुआ करते हैं,
लेकिन बाकायदा यहाँ पर सुना जा रहा है, आप ये सुनिए कि ये बाकायदा उन्हीं से, जहाँ पर जिस कब्र पर जा रहे उसी से बाकायदा, जिस तरह से एक अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, एक अल्लाह से दुआ होनी चाहिए, वो बाकायदा दुआ उससे कर रहा है जो है ये। आप सुनिए। गाइस आओ दुकान लगाते हैं। मेरी ज़बान की लाज रखिए गरीब नवाज, हजरत को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाइए गरीब नवाज, अपने कदमों से अपनी चौखट से लगा के रखिए मौला, तमाम मुरीदीन पे करम अता फरमाइए हुजूर, सबका भला सबकी खैर अता फरमाइए हुजूर, आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी का सदका अता फरमाइए गरीब नवाज। बहारे अंजुमने मुस्तफा गरीब नवाज, सुनो सुनो मेरे हाजत रवा गरीब नवाज, हाजत मैं रवा। दे रहा हूँ सदा पर सदा गरीब नवाज, तुम्ही को लाज है ख्वाजा कि हम तुम्हारे हैं, हमें वसीला तुम्हारा है या गरीब नवाज, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर, अताए हक हो अताए रसूल हो ख्वाजा, तुम्ही हमारे हो मुश्किल खुशा गरीब नवाज, मुश्किल तुम्ही ने हिंद को गुलशन किया है या ख्वाजा, तुम्ही हो इसके निगहबान या गरीब नवाज, पंजतन पाक के सदके में गरीब नवाज सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमाइए। बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मदद कुन या मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, बहक के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गाइस मेरा तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन है, हाजत रवा कौन है, मुश्किल कुशा कौन है? और वो लाइन तो बहुत तगड़ी थी, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। अब मेरा सवाल ये है कि अगर अल्लाह पाक मुझे कुछ अता करना चाहे तो क्या ख्वाजा साहब की रजा चाहिए उसमें? तुम लोग कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना कि इस पूरी वीडियो में अल्लाह पाक से कितनी बार दुआ मांगी गई है। मेरी ज़बान की लाज रखिए गरीब नवाज। आप ये देखिए एक वीडियो देखिए, एक गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं, एक गैर मुस्लिम एक मजार पर गया और वहाँ का जो मुजावर है उससे वो कह रहा है, एक गैर मुस्लिम को समझ में आ गया कि ये जो कब्र पूजा जो हो रही है ये गलत है, ये इनवैलिड है। वो कह रहा है, वो खुद कह रहा है इस बात को कि हमने जो पढ़ा, हमने जो देखा, हमने जो जाना है तुम्हारी कुरान और हदीस के जरिए से, वो यही है कि ये सारी चीज़ें इनवैलिड है, इस्लाम में ये नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये क्या कह रहा है? वो किसका तरीका है? वो अहले हदीसों का तरीका है। वो ये कह रहा है वो अहले हदीसों का तरीका है, वो अहले हदीस लोग कह रहे हैं, हम लोग नहीं। और एक बात और, जब उस आदमी ने इससे सवाल किया कि ये तुम्हारे पूर्वजों की यहाँ पर जो कब्रें हैं, तुम भी मरने के बाद तुम भी यहीं पर आओगे, तुम्हारी भी कब्र यहीं पर बनेगी। तो वो आदमी कह रहा, वो मुजावर कह रहा है, वो हरामखोर मुजावर कह रहा है कि हमें तो कहीं भर भी दफन कर दिया जाएगा, हमारी रूह यहीं पर वापस आएगी। वो ये कह रहा है उसकी रूह वहीं पर वापस जाएगी, जबकि मरने के बाद इंसान उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और अल्लाह ताला अल्लाह के फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं, ठीक है, और वो आलम अरवाह में चले जाता है, वो अल्लाह के पास चले जाता है। वो किस हाल में और कैसे, वो अल्लाह की मर्जी है। अब वो अपने, अगर अच्छे अमाल होगा तो अच्छा सज़ा उसको मिलेगा, बुरा अमाल होगा तो उसको जहन्नम की गड्ढे का वो होगा जो है कब्र में उसके लिए। लेकिन ये कह रहा है कि हमारी रूह वहाँ पर, उसके पास क्या दलील है? कोई है दलील कि हम यहाँ पर मरेंगे और मेरी रूह वहाँ जाएगी? ये हरामखोर लोग इस तरह से ये बात करते हैं। इन हरामखोरों से जो है ये दीन मिलेगा जो है, इन हरामखोरों से, इस तरह से जो ये बकवास करते रहते हैं, इनके मौलाना जो इनके मुफ्तियाँ हैं, ये हरामखोर, ये लोग कब्रों की दावत दे रहे हैं, कि कब्रों पर आने की दावत दे रहे हैं, शिर्क की खुल्लम खुल्ला दावत दे रहे हैं। इनसे तौहीद की उम्मीद की जा सकती है? आप सोचिए, इनसे तौहीद की उम्मीद की जा सकती है कि इनसे तौहीद बयान होगा? ये क्या है? ये यासीन शरीफ है, टूट गया था, उसको रिपेयर करवाना लगा था। नहीं, रिपेयर करवाया था।
ने बना दिया था, तो मसला बना हुआ है। पर कब्र के लिए सुपुर्द खाक होना जरूरी है। मैं- पक्की कब्र बनाना हराम है, पता कि नहीं? नहीं, सूफीज में पहले आया कि मोहम्मद साहब पहले आए? मोहम्मद साहब पहले आए हैं। ये पक्की कब्र बना दी, हाँ, तो पक्की कब्र बनाना हराम है, पता नहीं आपको? नहीं, वो अहले हदीस है ना, मैंने आपको बताया था शुरू में। मतलब अलग है वो। हाँ, वो फिरका परस्ती में आते हैं। हम तो सीधा जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका मजार पूजा, चादर चढ़ाना, फूल लगाना, ये सब इनवैलिड हो गया। आपकी कब्र भी इधर ही बनेगी? नहीं यानी अभी अनुमति ही नहीं है। नहीं, पर आप तो उनके वंशज हो ना, इधर ही दफन हो सकते हो आप तो। बिल्कुल, रूह तो हमारी यहीं आएगी, मुतमिन कहीं पे भी कर दिया जाए हमें। नहीं, वो तो जब कयामत के दिन आएगी, अभी थोड़ी आ जाएगी। तो रूह अल्लाह ताला कह रहा है अपने कुरान में, अल्लाह ताला अपने कुरान में कह रहा है, क्या कह रहा है? ये सूरह जुमर की आयत है, ठीक है। आप कह दीजिए, ऐ जाहिलो, क्या तुम मुझसे अल्लाह के सिवा औरों की इबादत करते हो? हाँ? आप कह रहे, अल्लाह ताला कह रहा अपने नबी से कि आप कह दीजिए कि क्या तुम मेरे सिवा, ऐ जाहिलो, कि क्या तुम मेरे सिवा किसी और की इबादत करते हो? हाँ? ये आयत है जो, और उसके बाद जो है इसी आयत में आगे का अल्लाह ताला ने फरमाया क्या, सूरह आयत नंबर 65 में भी कहा, यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी हमने वही की। समझे? ये कहा अल्लाह ताला ने कि हमने जो वही की भी वही की कि अगर तूने शिर्क किया तो बिलाशुबा तेरा अमल ज़ाय हो जाएगा, और बिल यकीन तू ज़ियाकारों में, यानी कि नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आयत जो है नाजिल हुई है, और इसमें जो कहा जा रहा है कि नबियों को भी अल्लाह ताला ने तलकीन की है, अल्लाह ताला जो है नबियों को भी तलकीन की है, समझे? तो इस तरह से जो है शिर्क के बारे में अल्लाह ताला खोल कर बयान कर रहा है। और हमारे ये हरामखोर मौलाना है, ये हरामखोर लोग जो है हमारे बता रहे हैं जो है कि आओ यहाँ पर जो है दरगाहों पर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कबूल होने वाली दुआएं हैं, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कबूल होगी। ये हरामखोर जो है इन लोगों से उम्मीद की जाए कि ये तौहीद को बयान करेंगे, और ये इस्लाम के दाई हैं। ये गैर मुस्लिम को अगर दावत देना तो क्या देगा दावत?